is very small, so nuclear charge is very high, due to which it has high ionization enthalpy and least electropositive character. Electropositive character means tendency to lose the electron. Though lithium also want to lose the electron to gain the noble gas configuration, but because ionization enthalpy is very high, so due to this reason, lithium is not able to remove one electron easily. That is why we can say that it has least electropositive character. The polarization power of lithium is also quite high due to its small size and high nuclear charge. Okay, uh, and because of this, it has covalent character. As I've told you, that other elements of this group 1, when form the compounds, that compounds are ionic in nature, but lithium form the compounds which are covalent in nature. It has no vacant d orbitals in its vacant shell. So these are some of the reasons that why lithium show anomalous behavior. So lithium show anomalous behavior, this we have discussed so many times. But what is that anomalous behavior? What is that behavior which is different than the other elements of the group? So the first one is that lithium is hardest out of all the elements of its group. When I'm saying hardest, it doesn't mean it is the hardest substance of the periodic table or it is the hardest substance of all the metals. I'm talking about group 1. Whatever comparison I'm doing, that I am comparing with the other elements of its group. ठीक है, ऐसी बात ऐसा मत समझना कि जो भी मैं चीज कंपेयर कर रही हूँ वो सबके साथ कर रही हूँ। सिर्फ हम ग्रुप 1 के जो बाकी के एलिमेंट्स बच जाते हैं उनके साथ ये कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। तो आउट ऑफ दैट ऑल, लिथियम इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, जिसकी वजह से ये बहुत हार्डली बॉन्डेड रहता है उसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से ये हार्ड होगा। नाउ बिकॉज इट इज हार्ड, so its melting and boiling points are higher than the other elements of group 1, obviously, है ना? And because of this only, lithium is less reactive as compared to the other elements of the group. इसी रीजन की वजह से लिथियम क्या होगा, रिएक्टिविटी भी उसके बाकियों के कंपैरेटिवली कम होगी। जैसे लिथियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मेटल्स, इज डज नॉट गेट टार्निश्ड और रेडिली रिएक्टेड विद एयर। हमने देखा कि बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, वो पर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, बट लिथियम कैन फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड। तो यहीं पर पता चलता है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली कम है। ठीक है? Then lithium bicarbonate is not obtained in the solid form, while all other elements of this group form solid bicarbonates. Solid bicarbonates बनाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जबकि लिथियम का बाइकार्बोनेट हमें सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता। ठीक है? देन lithium is deliquescing and crystallizes as a hydrate. लिथियम क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो LiCl डॉट 2H2O, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें मिलते हैं, वेयर एज अदर एल्केलाई मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म द हाइड्रेट्स। लिथियम की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रेट्स बनाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जबकि बाकी के जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत रेडिली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है? द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम हैव लोअर आयनिक कैरेक्टर देन सॉल्ट्स ऑफ अदर एल्केली मेटल्स, बिकॉज ये तो कैसा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा है, तो इसके जो सॉल्ट्स हैं उनमें आयनिक कैरेक्टर जो है बाकी के अल्कली मेटल्स के कंपैरेटिवली कम होते हैं। एंड इसका एक रीजन और भी है कि दिस इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ लिथियम। हाई पोलराइजेशन पावर है तो पोलराइज जितना ज्यादा करेगा उसकी वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। It readily reacts with nitrogen to form nitride, while other elements do not react. Lithium, when react with nitrogen, it forms Li3N, which is lithium nitride, D. But other elements do not form. Only lithium combined with carbon and silicon form the carbides and silicides. Other alkali metals do not do this. Lithium hydride, hydroxide and carbonates are unstable and decomposes on heating, while the corresponding compounds of the rest of the family members are stable and does not compound. Like if you will heat LiOH, which is lithium hydroxide, it will break down into lithium oxide, which is Li2O, and water will release. So these are some of the characters which show that yes, lithium show anomalous behavior. There are some other also, like the hydride of lithium is more stable as compared to the hydride of other members. हमने देखा था
कि हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी थी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी. Then lithium chloride and nitrites are soluble in alcohol while the salts of sodium are insoluble. So ये सब प्रॉपर्टीज जो है हमारी ये शो करती हैं कि लिथियम इज डिफरेंट बिहेवियर. लिथियम शोज डिफरेंट बिहेवियर. ओके. उसके बाद आता है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम. यू पीपल नो अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप. आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था. क्या था वो? कि ग्रुप 1 का फर्स्ट मेंबर और ग्रुप 2 का सेकंड मेंबर जो डायगोनली अगर आप ड्रॉ करो एक डायगोनल एक दूसरे के साथ आते हैं, दे ऑलवेज शो द सेम बिहेवियर. तो अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो क्या उनके सेम बिहेवियर्स हैं? फर्स्ट थिंग इज देयर साइज. द साइज ऑफ लिथियम इज 152 पिकोमीटर्स एंड साइज ऑफ मैग्नीशियम इज 160 पिकोमीटर्स. तो अगर आप देखें तो बहुत नियर है दोनों, बहुत ज्यादा पास है दोनों का साइज. और बिकॉज साइज दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम में आ जाता है, क्लोज है बहुत ज्यादा, that is why their most of the properties are also same. Like both have almost same electronegativities. lithium की electronegativity होती है 1.0 और मैग्नीशियम की होती है 1.2. सो दोनों की बहुत पास पास है. अब बिकॉज साइज उनका सेम है और सारी प्रॉपर्टीज हमारी किससे रिलेटेड होती है? साइज से मोर और लेस, या फिर वेकेंट आपकी वैलेंसी से. तो अब एक कैरेक्टर तो इनका सेम हो गया तो उसकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी. बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर क्वाइट हार्ड and they are harder and lighter than other elements in the respective groups. Then lithium hydroxide and magnesium hydroxide both are weak bases. Then lithium and magnesium both when combined with oxygen they form the monoxides. They do not form the peroxides and superoxides. So this is also one of the property. ठीक है. अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर सेम, बोथ आर हार्ड, both form the weak bases which are the hydroxides and both form same type of monoxide. ये इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज को सिमिलर कर देगा. सॉलिड बाइकार्बोनेट्स ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट फॉर्म. अभी हमने पढ़ा ना लिथियम का नहीं बनता, सेम वे मैग्नीशियम भी नहीं बनाता. लिथियम और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों के साथ ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. LiCl 2H2O, MgCl2 8H2O, दोनों के साथ हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं. ठीक है. देन बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल. दोनों को अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो दोनों के दोनों ही इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं. So these are some of the properties which show that yes, lithium and magnesium has the same behavior. So for examination point of view, if I talk, so all these questions are very important. Number one, what is the anomalous behavior of lithium? Number two, what different properties lithium show than the other elements of its group, and what are the characteristic features which show the diagonal relationship between lithium and magnesium. तो एटलीस्ट आपको 5-5-6 पॉइंट्स सबके आने चाहिए. ठीक है. आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 1. ग्रुप 1 में अब आपके सिर्फ यूजेस रह गए हैं, सोडियम पोटेशियम और बाकी के एलिमेंट्स के, वो मैं आपको साथ में ही करा दूंगी. नाउ वी विल स्टार्ट ग्रुप 2, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ओके. तो इन सबको अगर आप याद करें तो कैसे याद करते हैं आप? बैंग बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. So what are the characteristic features of all the elements of group 2? First is atomic size, electronic configuration. If you see all possess the same electronic configuration, that is 2s2. Helium 2s2, neon 3s2, argon 4s2, means ns2 is their electronic configuration, where the number of n will change according to the number of shell, but rest will remain same, and here the noble gas will change. So if they will lose their 2 electrons, they will get the noble gas configuration. Clear? If we talk about their size, if we compare with group 1, so group 1 possess bigger size than group 2. आपने देखा है ना, जब हम ग्रुप्स में along a period आगे जाते हैं तो साइजेस क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. तो इट मींस ग्रुप 1 का जो साइज है वो ग्रुप 2 के कंपैरेटिवली बड़ा होगा, है ना, ज्यादा होगा. तो साइज डिक्रीज होता चला जाएगा. अब जब साइज छोटा हो रहा है तो क्या होगा? न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा. या आप ये कह सकते हो कि साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है. न्यूक्लियर का जब चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? इस पे ये अट्रैक्ट ज्यादा होगा न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइज कम हो जाएगा.
इस पर न्यूक्लियर के चार्ज से इसके ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है, दैट इज वाई इसका जो साइज है वो डिक्रीज है इसके कंपैरेटिवली। बट अदरवाइज अगर आप ग्रुप 2 की बात करें तो बाकी ग्रुप्स के कंपैरेटिवली इनका साइज अच्छा खासा होता है। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे द साइज विल इंक्रीज। वाई? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रिंसिपल शेल। सेम रीजन, बेरिलियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, और बेरियम से बड़ा रेडियम। रेडियम की केमिस्ट्री हमें पढ़नी नहीं है बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज inversely proportional to the size. Now because their size is smaller than group 1, so that this is the reason that their ionization energy is greater than group 1. ग्रुप 1 से ज्यादा होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब ग्रुप 1 से ज्यादा अगर आयनाइजेशन एनर्जी है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 के कंपैरेटिवली दे आर लेस रिएक्टिव, है ना? वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी पढ़ेंगे। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर। इनके पास ऑलरेडी फुली फिल्ड है, एस के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, दे आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 1 में जरूरत थी इसलिए वो क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था, बट यहाँ पर 2 उनके पास ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इनमें क्या होना चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी बहुत हाई होती हैं और सेकंड लो होती हैं, जबकि ग्रुप 1 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं, सेकंड जो होती है वो हाई होती है। तो अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे तो सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज comparatively lesser than the first ionization energy of magnesium, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये रेडिली देना चाहेगा, लेकिन इसके पास ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये नहीं देना चाहेगा। बट अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज इन दोनों की कंपेयर करोगे तो सोडियम की बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, बिकॉज उसके पास ये इलेक्ट्रॉन देते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बट मैग्नीशियम की वो वीक हो जाएगी बिकॉज एक देने के बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन रेडिली देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई the first ionization enthalpy of magnesium is greater than sodium, but the second ionization enthalpy of sodium is greater than magnesium. So this is the reason आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में देखो 496 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एंथैल्पीज है इनकी, और ग्रुप 2 की अगर आप देखो तो 4562, इतना ज्यादा डिफरेंस है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज में, तो ये काफी कम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरेटिवली। लेकिन अभी आप यहीं पे अगर कंपैरिजन करोगे सेकंड में तो वो डिफरेंस जो है हमारा वो कम होता चला जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, because they also have the tendency to lose the electrons, so what will we will say that they are also electropositive in nature। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को देकर पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इनका नेचर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड दीज आर आल्सो मेटल्स लाइक ग्रुप 1 की तरह इनके अंदर भी मेटालिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें इनकी हार्डनेस की तो ग्रुप 1 के कंपैरेटिवली ये कम हार्ड होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके क्या होने चाहिए फिर उसके कंपैरेटिवली? हम्म बताओ, बिकॉज ये हार्डर है एल्किली मेटल से, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इनके? ज्यादा ज्यादा वो होंगे। हाई। ज्यादा होंगे, न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा हार्डर, और जब ज्यादा हार्ड है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल आल्सो बी हाई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो दे आर सिल्वरी वाइट एंड लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्किली मेटल्स। मतलब नॉर्मली अगर आप बात करें तो आप इनको भी सॉफ्ट मेटल्स कह सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप 1 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके कंपैरेटिवली ये हार्ड होते हैं। एंड दे आल्सो फॉर्म अ क्लोज्ड पैक्ड इन देयर क्रिस्टल लैटिस। इनका जब हम अरेंजमेंट देखते हैं तो ये भी क्रिस्टल लैटिस में अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक, उसके अलावा अब आता है कि दे इम्पार्ट द कलर्स। जो ग्रुप 2 के जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को जब इन्हें बर्न किया जाता है। मींस इफ वी डिप प्लैटिनम वायर इन एल्किली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये तो, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड बर्न इन अ फ्लेम,
then every metal give a characteristic color. जो इनकी पहचान है एक्चुअली हम कह सकते हैं, जैसे हमारे थंबप्रिंट्स हमारी पहचान होते हैं ना, इसी तरीके से इनकी पहचान है वो कलर। अगर हम बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो वो कोई कलर नहीं देता, वो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। उसके बाद हम कैल्शियम की बात करें तो वो ब्रिक रेड कलर देता है फ्लेम को। स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो क्रिम्सन रेड कलर देता है वो। उसके बाद अगर आप बेरियम की बात करें तो ग्रासी ग्रीन कलर देता है वो जलाने पर। और एरेडियम की बात करें अगर आप, तो वो भी कलर देता है, बट हम जैसे मैंने बताया उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, बट अदर्स इम्पार्ट द कलर्स। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट द कलर। सो क्या रीजन है उनका कि बोथ हैव हाई value of ionization enthalpy. As a result, electron moves to high level and then move back to the lower level. इसीलिए कलर तो कैसे आता है कि when electrons gain the energy, they moves to the higher level, and when they come back to their lower level, they give a color. But beryllium and magnesium, they do not impart any color. Why? Because they are already having the high value of ionization enthalpy. उन्हें तो आपको अगर एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी ना मिलने की वजह से ये हायर लेवल पर जाते ही नहीं है, एक्साइट ही नहीं होते हैं। और जब एक्साइट होकर हायर लेवल पर जाएंगे नहीं तो वापस कहाँ से आएंगे, जहां थे वहीं के वहीं है। तो ना तो ये एक्साइट होकर हायर लेवल पर जाएंगे ना वहां से वापस आएंगे, इसलिए ये फ्लेम को कोई कलर नहीं देते। सो दिस इज अगेन, जहां जहां मैंने कल भी बताया था, जहां जहां आपको एक्सेप्शन मिलेगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ बिकॉज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रहे हैं तो ये दोनों क्यों बॉस बन रहे हैं, इन दोनों में कौन सी ऐसी बात आ गई कि हम कलर नहीं देंगे। तो रीजन यही आपको लिखना है, सिंपल, बिकॉज दे हैव हाई आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी। बस सिंपल, और कुछ करना ही नहीं आपको। देन दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट आयंस। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या बना रहे थे, मोनोवेलेंट आयंस। ये कैसे बनाते हैं बाइवेलेंट आयंस, व्हाई? बिकॉज दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इन्हें जब भी अपना वो करना होगा लूज, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करेंगे। जैसे अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो फॉर्मूला इज NaCl। ऑन द अदर हैंड अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो फॉर्मूला इज MgCl2, है ना। तो बाइवेलेंट एटम्स बनाएंगे ये। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है इन सबके अंदर भी। हाँ, जैसे हमने बोला कि ग्रुप 1 के अंदर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ग्रुप 1 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट यस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड डाउन द ग्रुप व्हेन वी गो, their electropositive character increases. Their electropositive character increases means their metallic character increases. Their metallic character increases means their nature of forming the ionic bond increases. It means their covalent nature decreases. अब एक चीज से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो ऑब्वियसली देयर that metallic character will also increase, and their ionization energies are also decreasing, and their ionic character will increase, their covalent character will decrease. तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अगर आपको एक कैरेक्टर याद है, आपको लिंक करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके साथ उसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली उनके बाकी की चीजों को कंपेयर कर सकते हो। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में कुछ रह तो नहीं गया। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज, ऑल द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑल द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, जो कि बाकी सारे मेटल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी थर्मली वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अगर आप उन्हें हीट देंगे तो इजिली वो उनके बॉन्ड्स को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, थर्मली ये सब स्टेबल होते हैं। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। अब नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। Now, if we talk about the chemical properties, so we know that they have low ionization enthalpies and high electropositive characters, है ना। So the alkaline earth metals have strong tendency to lose the valence electrons. एक इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, बट उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली
लूज कर देंगे. So that is why we can say that they are very reactive. If you will compare with group 1, then they are less reactive obviously, but overall if you say, so they are very reactive, and their reactivity of their elements increases when we go down the group. Okay, alkaline earth metals are in general less reactive than alkali metals, but overall they are reactive, and the chemistry is mainly dominated by di-positive oxidation state. Like the alkali metals have +1 oxidation state, and alkaline earth metals, what oxidation state they will possess? Because they lose 2 electrons, so their oxidation state will be, yes Anandini, what will be the oxidation states of alkaline earth metals? Can you tell me? Guess. +1 तो alkali metals की है. +2. Yes, because they are losing 2 electrons, baby. So their oxidation state will be +2. ठीक है, +2 oxidation state होगी इनकी. Now if we talk about the reaction with what oxygen, सबसे पहले हम air या oxygen के साथ ही बात करेंगे. So whenever alkaline earth metals react with oxygen, they form oxides. Which type of oxides they can form? These oxides are, अच्छा अगर हम बात करें पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, they are inert in nature, means they are non reactive. Why they are non reactive? Because they have a tendency to form a film or layer, you can say, of oxides on the surface. जैसे शायद आपने ये एल्यूमिनियम के बारे में भी पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में अक्सर बताया जाता है कि एल्यूमिनियम इजीली रस्ट नहीं होता. व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अराउंड इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई वो आगे फर्दर उसको रिएक्ट नहीं करने देता. इसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम वैसे तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लेयर बना लेते हैं चारों तरफ, जो फर्दर बेरिलियम और मैग्नीशियम को रिएक्ट नहीं होने देता. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर इनर्ट इन नेचर. जैसे नोबल गैसेस का नेचर होता है ना, दे आर इनर्ट इन नेचर, इस तरीके से ये भी इनर्ट होते हैं नेचर में. उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड्स आर रिएक्टिव. वो नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली रिएक्टिव होते हैं, और MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं ये, बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो MO टाइप के बनाएंगे. यानी बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? BeO. मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा? MgO. कैल्शियम ऑक्साइड CaO. CrO. स्ट्रोंशियम ऑक्साइड BaO. बेरिलियम ऑक्साइड. So reactivity with oxygen increases down the group. Why? Because of the increase in electropositive character as a result of decrease in ionization enthalpy. As I am telling you again and again, all these things are related with each other. When we will go down the group, so what will happen? Their electropositive character will increase. Why electropositive character will increase? Because their ionization enthalpies will decrease, and because their electropositive character will increase, so that is why reactivity will also increase. ठीक है. Beryllium oxide is amphoteric in nature. Okay, and magnesium oxide is weakly basic, you can say weak basic, but other oxides, that is calcium oxide, strontium oxide and beryllium oxides are basic in nature. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नेचर में कैसे होते हैं. तो नेचर में सारे ऑक्साइड इसके बेसिक होते हैं. बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वीक बेस. अच्छा, जैसे हमने ग्रुप 1 में पढ़ा कि लिथियम शो एनॉमलस बिहेवियर, ग्रुप 2 में सेम वे बेरिलियम आल्सो शो एनॉमलस बिहेवियर, एंड रीजन इज सेम. बिल्कुल सेम रीजन आएगा आपका. लिथियम का लर्न कर लो, वही आपको बेरिलियम के लिए लिखना है. क्या? कि ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली साइज इज वेरी स्मॉल, so ionization enthalpy will be high, electropositive nature will be less as compared to the other elements, and there is absence of vacant d orbital. सेम वही 4 रीजन आएंगे. उसकी वजह से बेरिलियम भी जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है. 2 एनॉमलस बिहेवियर तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो इनर्ट है नेचर में, जबकि बाकी के सब रिएक्टिव है. बेरिलियम ऑक्साइड जो है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जबकि बाकी की क्या है? बेसिक है नेचर में, है ना. मैम इनर्ट का मतलब ये है कि आगे रिएक्ट नहीं करेंगे बेरियम हाँ ऑक्साइड और हाँ मैग्नीशियम. हाँ, आगे रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, इससे नॉन रिएक्टिव कह सकते हो आप. इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव. ठीक है. ओके. अच्छा, बेसिक कैरेक्टर. अच्छा, एक बात बताओ, बेसिक कैरेक्टर ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका, अभी मैंने बोला बेसिक है,
बट डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैम इंक्रीज। देखो, 2 रीजंस हैं जिससे आप मुझे अभी आंसर देने के लिए कैपेबल होने चाहिए थे। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया